یہ اقتدار کے بھوکے، یہ مصلحت کے غلام، یہ اقتدار کے بھوکے، یہ مصلحت کے غلام، وہاں بھی چپ رہے جہاں بولنا ضروری تھا۔ تعلیم کو لکھیں گے اگر تاج محل ہم، اس پے کرے تدریس کو محراب لکھیں گے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ دوستو آئیے سیف نیوز پر آج ایک ایجوکیشنل کوریج، تعلیمی معاملات کو لے کر ایک تجزیاتی معلوماتی رپورٹ آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ واقعہ گزشتہ کچھ ہفتہ قبل ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ مالیگاؤں کے اسکول بورڈ کے اعلیٰ آفیسر جناب FW چوہان، انہوں نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی کہ کچھ لوگوں نے انہیں ایک پرائیویٹ ہوٹل میں بلوا کر انہیں بندوق دکھائی اور ایک کاغذ پر زور زبردستی سے دستخط لینے کی کوشش کی۔ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرانے کے بعد 2 غیر مسلم افراد اور کچھ مسلم افراد پر مقدمے کا اندراج کیا گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اعلیٰ آفیسر، ایک ذمہ دار آفیسر اپنی آفس میں نہیں آتا اور ہوٹلوں پر جا کر یہ اپنا ویوہار کرتا ہے۔ یہ بات عوام کو اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی اور آج بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ بہرحال کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ اس معاملے میں AO پر زیادتی ہوئی، کچھ لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ AO لوگوں کو دھمکانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ AO مینس FW چوہان، مالیگاؤں اسکول بورڈ اور ناسک ضلع اسکول بورڈ کے ذمہ دار۔ دوستو یہ فائرنگ، بندوق دکھانے کا معاملہ، اس کی پیچھے اصل وجہ کیا تھی کہ گزشتہ کچھ برس قبل مالیگاؤں میں 20 افراد کو انوکمپا، حق وارث کی بنیاد پر ان جو اساتذہ تھے ان کے بچوں کو جوائن کیا گیا، دوبارہ تعینات کیا گیا۔ 20 افراد کو سرکاری نوکری دی گئی، وہیں 100 افراد کی بھرتی کی گئی، 52 افراد کو نااہل قرار دیتے ہوئے انہیں نوکری سے نکال دیا گیا۔ ایسے میں ایک مرد، مسلم مرد اور ایک مسلم خاتون منترالیہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ منترالیہ میں نہ جانے کس قسم کے کاغذات تیار ہوتے ہیں، اسکول بورڈ آفس میں وہ دوبارہ سبمٹ ہوتے ہیں اور ایسے 2 لوگوں کو نوکری پر، ڈیوٹی پر، ملازمت پر بحال کر دیا جاتا ہے۔ جن 2 لوگوں کو نوکری پر منترالیہ کے لیٹر پر بحال کیا جاتا ہے، ان کے مخالف کچھ اسکول کے غیر مسلم افراد اس معاملے کو لے کر AO کو شکایت درج کراتے ہیں، RTI کی معلومات کے لیے اپلائی کرتے ہیں، مگر کسی بھی طریقے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا اور یہ لوگ AO کو ایک پرائیویٹ پاٹنا پھاٹے کے پاس سکھ ساگر ہوٹل پر بلواتے ہیں اور یہاں ان کی نہ جانے کیا بات ہوتی ہے کہ AO صاحب ان پر بندوق دکھا کر زبردستی دھمکانے کا الزام لگاتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے منترالیہ کا لیٹر لایا وہ صحیح تھا یا غلط، اسے رجوع کرنے کے لیے AO نے بڑی رقم لی، اور کچھ لوگ بول رہے تھے کہ جس طرح بقیہ افراد کو کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو تمام لوگوں کو دوبارہ جوائن کیا جائے۔ اسی بات کو لے کر ایک وواد ہوا، یہاں سے ایک چہرہ عوام کے سامنے آیا، FW چوہان۔ وگرنہ مالیگاؤں شہر میں لوگ لیڈران کو، کارپوریشن کو، کمشنر کو غلط کہتے ہیں یا کہتے کہتے سو جاتے ہیں، مگر پہلی مرتبہ ایک نام سامنے آیا، FW چوہان، جو ناسک ضلع کے تعلیمی اعلیٰ آفیسر ہے۔ مالیگاؤں اسکول بورڈ کا نظام بھی انہی کی سرپرستی میں جاری رہتا ہے، ان کے ہی انڈر ٹیکنگ سارے کام کاج یہاں پر ہوتے ہیں۔ FW چوہان صاحب سے متعلق بیشتر میڈیا پر بھی آیا، کچھ لوگوں نے بتایا بھی نمائندے کو کہ یہ گزشتہ سال بھر سے اسکول بورڈ مالیگاؤں آفس میں آئے نہیں، اکثر فرار رہتے ہیں اور کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو مالیگاؤں اطراف کی کسی ہوٹل میں بلا کر کچھ دلال قسم کے کچھ تعلیم مافیا مل کر یہ مانڈولی کرتے ہیں اور اپنی رقم لے دے کر یہ چلے جاتے ہیں۔ ایسا الزام بیشتر افراد نے ان پر لگایا۔ کئی افراد نے ان کو ٹرانسفر کے معاملے میں بدعنوانی کی، انہوں نے ٹرانسفر کرنے کے معاملے میں، تو اس کی شکایت بھی کچھ لوگوں نے درج کرائی، جس کے لیٹرز بھی سوشل میڈیا پر گشت کر رہے ہیں۔ FW چوہان صاحب 6 ماہ میں سبکدوش ہونے والے ہیں۔ جس طریقے سے کرایہ دار جب دکان خالی کرتا ہے تو ہولڈر کے ساتھ وائر بھی لے کر چلا جاتا ہے، تو یہ 6 مہینے میں FW چوہان صاحب نہ جانے کیا گل کھلائیں گے، مگر مالیگاؤں شہر ہے کہ خواب خرگوش میں پڑا ہوا ہے۔ FW چوہان صاحب سے متعلق اکثر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ٹرانسفر کرنے کے نام پر یہ اکثر رقم لے لیتے ہیں۔ کھچڑی والوں کو سے بھی ان کے معاملات چلتے ہیں،
प्राइवेट स्कूलों के लिए बीच में दलाल माफिया किस्म के अफराद लगे हुए हैं जो इनके ज़रिए रिश्वत सताने का बाज़ार गर्म करते हैं। प्राइवेट स्कूल वालों को भी अजियत दी जाती है। बेशतर अफराद कई एजुकेशन माफिया दलाल इस मामले में बिल्डिंग और कारखानों के मालिक बन गए। दोस्तों, अब हम आते हैं कुछ मालूमात की बात पर कि मालेगांव कारपोरेशन के 450 करोड़ के बजट में हर महीना, हर माह, पर मंथ 3 करोड़ रुपया कारपोरेशन तालीम और ताल्लुम के नाम पर, प्राइमरी तालीम के नाम पर शिक्षण मंडल को देती है। FW चौहान साहब चूँकि अक्सर नासिक रहते हैं, मालेगांव आते नहीं, इसलिए मालेगांव की डिप्टी कमिश्नर देवचके मैडम को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। देवचके मैडम चूँकि मजीद कई चार्जेस कारपोरेशन के संभालती है और मसरूफियात के बाद वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाती। स्कूल बोर्ड ऑफिस में 3-4 लोगों का स्टाफ है, कागजात फाइल इधर से उधर करते हैं खाना पूरी करने के लिए, और यहाँ से भी कोई कामकाज और कोई मालूमात और कोई कारामद बात हो नहीं पाती। कारपोरेशन हर महीना 3 करोड़ रुपया स्कूल बोर्ड को देती है। इसके बदले में कारपोरेशन के प्राइमरी निज़ाम की आपको मालूमात बताते हैं कि मालेगांव कारपोरेशन शहर की हुदूद में कुल टोटल 80 प्राइमरी स्कूलें हैं, जिसमें महज 2 मराठी स्कूल है और 78 उर्दू स्कूलें हैं। ये 500 क्लास रूम है, 500 कमरे हैं। 500 कमरे 80 अलग अलग प्राइमरी नंबरों की स्कूलों में चलते हैं, जहाँ पर तलबा की तादाद 17,000 है। 8,000 लड़कियां, 9,000 लड़के, 500 रूम, 80 प्राइमरी स्कूलें, जिन पर 450 लोगों का स्टाफ है, 450 असातिज़ा हैं। हालांकि मालेगांव शहर में 27,000, 17,000 तादाद पर कम से कम 1,000 तलबा, 800 तलबा और मजीद 50 लोगों का दीगर स्टाफ भी होना चाहिए, मगर 450 का स्टाफ काम करता है। इन्हीं 3 करोड़ रुपए में 1,000 पेंशनर्स जो सुबकदोश असातिज़ा हैं, रिटायर्ड टीचर है, इनको 1,000 पेंशनर्स को भी इन्हीं 3 करोड़ रुपया माहाना में पेंशन दी जाती है। इतनी बड़ी रकम जाने के बाद भी प्राइमरी का तालीमी निज़ाम कहीं से सुधर नहीं रहा है। गरीब आज प्राइवेट स्कूलों की तरफ कर्जा लेकर कुछ रकम पसंदाज करके प्राइवेट स्कूलों में दाखिला अपने बच्चों का कराते हैं गरीब सरपरस्त, मगर प्राइमरी का निज़ाम सुधर नहीं पा रहा है। हालांकि कुछ ज़मीर रखने वाले जिंदा ज़मीर असातिज़ा हैं जो अगर ड्यूटी पर नहीं भी जाए तो कोई ऑफिसर इनको देखने वाला नहीं है, मगर ये अपनी ज़मीर की आवाज़ पर गरीबों को तालीम देने के लिए बराबर स्कूलों में जाते हैं। कुछ असातिज़ा ने तो अपनी ज़ाती रकम से प्राइमरी स्कूलों में रंगो रोगन, तज़ीनकारी, आराइश, तो उसको एहतसाम का मामला अपनाया ताकि प्राइमरी का जो निज़ाम तालीम हो उसका मेयार बुलंद हो सके, मगर ऑफिसरान की जानिब से, कारपोरेशन की जानिब से, लीडरान की जानिब से प्राइमरी असातिज़ा, प्राइमरी निज़ाम तालीम को किसी भी तरीके का कोई कोऑपरेट नहीं होता। दोस्तों, आज मुल्क भर की फिरका परस्त ताकतें उर्दू ज़बान को ख़त्म करने के लिए तगवदो करती हैं। अक्सर शरंगेज़ बयानात दिए जाते हैं, मनफी एक्टिविटीज़ भी जारी रहती है। उर्दू ज़बान ख़त्म करने के लिए जब गैर आमादा है तो हम उसके दिफा के लिए आगे क्यों नहीं आते? उर्दू ज़बान को बचाने के लिए वाहिद ज़रिया प्राइमरी निज़ाम तालीम है। प्राइवेट स्कूलों में अक्सर अंग्रेज़ी और दीगर शोबा जाती कोर्सेज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उर्दू ज़बान को बचाने के लिए प्राइमरी निज़ाम तालीम को दुरुस्त करना निहायत ज़रूरी है, जिसके लिए लीडरान कभी ध्यान नहीं देते। 60-70 लाख रुपए की अगर रोड बनती है तो उस पर RTI लगाकर मालूमात देने वाले 1 दर्जन पैदा हो जाते हैं, मगर इतनी बड़ी रकम 3 करोड़ रुपया माहाना जिस निज़ाम पर खर्च हो रहा है, इस पर न लीडरान ध्यान देते हैं, न सरकर्दा अफराद ध्यान देते हैं, न सोशल वर्कर्स, न अदारे। ज़रूरत इस बात की है कि हर सोशल वर्कर अपने इलाके की प्राइमरी स्कूलों का दौरा करे, वहाँ खातिर खा खिदमत पेश करे। उस इलाके के जो साहिबान सरवत हैं, जो मुखैरान हैं, जो डोनर्स हैं, उनको भी चाहिए कि प्राइमरी स्कूल को सुधारने के लिए वहाँ पर अपना योगदान पेश करें, वहाँ अपनी कुर्बानियाँ दें। कारपोरेटर्स को भी चाहिए कि अपने फंड का कुछ हिस्सा प्राइमरी स्कूलों के अतराफ में खर्च करें, और जो असातिज़ा उस इलाके में रहते हैं उनका काम है कि वहाँ पे तालीम का मेयार बुलंद करने के लिए जदीद तालीम किस तरह यहाँ पर दी जा सके, इसके लिए इन्हें अपने मशवरे अपने करीब की प्राइमरी स्कूलों में देना चाहिए। तब कहीं जाकर मालेगांव शहर का प्राइमरी निज़ाम सुधरेगा। दोस्तों, प्राइमरी निज़ाम में बेइंतहा बिगाड़ है। कुछ लोग तो
बिल्डिंगें टूट जाने की वजह से किराए का मकान लेकर असातिज़ा अपने पगार से किराए की जगह का किराया दे रहे हैं और वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मज़ाफ़ात की जो स्कूलें हैं, दयाना, मालदा, दरेगांव, मोहन बाबा नगर, सोएगांव, इन अतराफ की स्कूलों में गुर्बत ज़्यादा होने की वजह से बच्चों की तादाद ज़्यादा रहती है। यहाँ पर असातिज़ा कम है, कोई टीचर वहाँ जाना नहीं चाहता। जबकि मालेगांव शहर सेंट्रल में आसूदा हाल मुतवस्सित तबका होने की वजह से यहाँ ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं, इसलिए यहाँ प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की तादाद कम है, लेकिन हर टीचर अपने आप को सेंट्रल में किए हुए। तो ये जब एक शफ़ाफ़ ऑफिसर आएगा या लीडरान इस बात पर ध्यान देंगे तो होगा ये कि मालेगांव से कुछ लोगों को ट्रांसफ़र करके मज़ाफ़ात के एरिए में गरीब बच्चों को तालीम देने के लिए भी भेजा जाए। दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि म्यूनसिपैलिटी होने के बाद जब कारपोरेशन हुई, जिस म्यूनसिपैलिटी को कारपोरेशन किया जाता है, कारपोरेशन होने के बाद में वहाँ स्कूल बोर्ड का निज़ाम संभालने के लिए 1 क्लास ऑफिसर नामज़द किया जाता है, मगर वह नाकामी के गुज़िश्ता कई सालों से मालेगांव शहर कारपोरेशन में तब्दील हो चुका है, मगर अभी तक यहाँ पर 1 क्लास ऑफिसर नहीं आया। FW के चौहान साहब तीसरे दर्जे के ऑफिसर हैं और वो इतना बड़ा चार्ज संभाल रहे हैं। कारपोरेशन का तो बावा आदम ही निराला है। कारपोरेशन का मेन अकाउंटेंट 3 मरतबा निलंबित और सस्पेंड हो चुका है, उसके बाद भी वो कारपोरेशन का निज़ाम संभाल रहा है। ये लीडरों की हिकमत अमली है या प्रशासन इंतजामिया की? बहरहाल दोस्तों, इन मज़ाफ़ाती इलाकों में तालीम का निज़ाम सुधरने के अलावा आज खिचड़ी का जो ठेका था उसे सेंट्रलाइज कर दिया गया। 6 अफराद ने मिलकर ठेका लिया और सब ने अपना अपना एरिया इलाका बांट लिया। हर एक आदमी के हिस्से में कुछ स्कूलें आती है, कुछ मुकामात पर खिचड़ी बराबर आती है, कहीं ख़राब आती है, कहीं नहीं आती है, कुछ बच्चे गैर हाजिर रहते हैं, उनको भी जोड़ लिया जाता है। जब इसके खिलाफ असातिज़ा शिकायत करते हैं तो स्कूल बोर्ड, प्रशासन मंडल, FW चौहान, देवचगे मैडम किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करती। लिहाजा ये बात भी सामने आई कि खिचड़ी मामले में भी कहीं ना कहीं से बदउनवानी होती है। दोस्तों, सन 2017 में असम्बली इजलास जब नागपुर में सरमाई इजलास मुनक़िद हुआ, उस वक्त तो ये फैसला लिया गया था कि जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में बच्चे को 3 साल की उम्र से दाखिल किया जाता है, पहले प्री प्राइमरी, प्री केजी, फिर केजी, फिर सेकंड केजी, इस तरीके के 3 दर्जे होते हैं। 3 साल की उम्र में बच्चा प्री केजी में जाता है, चौथे साल में वो केजी में जाता है और 5वें साल में सेकंड केजी में जाता है और 6ठे साल में वो पहली जमात में जाता है। बच्चा जब कम उम्र से तालीम की तरफ राग़िब होगा तो उसका तालीमी लियाकत उसकी बढ़ेगी। जब बच्चा 6 साल की उम्र से स्कूल में दाखिल होगा तो प्राइमरी निज़ाम पहले से ही ख़राब है, तो ऐसे में वो क्या सीख पाएगा और मालेगांव शहर में तालीम का गिराव किस तरह के आगे बढ़ पाएगा। इसलिए सन 2017 में नागपुर सेशन में फैसला हुआ कि तमाम सरकारी प्राइमरी स्कूलों में प्री केजी से दाखिला किया जाए, फिर केजी, सेकंड केजी, उसके बाद चौथे साल में पहली में दाखिला दिया जाए, मगर मालेगांव में बराह रास्त तो पहली जमात में दाखिला दिया जाता है। इस बाबत माजी में मालेगांव कारपोरेशन में रहे डिप्टी कमिश्नर जनाब नितिन कापड़नीस ने इसके लिए काफ़ी कोशिश की थी कि प्री केजी से यहाँ पर दाखिला शुरू किया जाए, मगर मालेगांव के लीडरान और यहाँ के इंतज़ामिया और ऑफिसरान ने इनकी एक नहीं चलने दी। कुछ लोग ये चाहते हैं कि जिन जगहों पर प्राइमरी स्कूलें जारी हैं वो प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, उसे प्राइवेटाइजेशन किया जाए और उस जगह को हड़प कर वहाँ BOT के तर्ज पर शॉपिंग बनाकर अपने अदारे के नाम पर उसे एक्वायर करके उस जगह को हड़प कर लिया जाए। इसकी भी लीडरान पर की इस बारे में भी नज़र है। आवाम को चाहिए कि प्राइमरी स्कूलों को बचाए, इसके प्रमोशन में, इसके इर्तका के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश करें। दोस्तों, पूरे मुल्क में तालीम एक धंधा बन चुका है। मालेगांव में भी ये बिज़नेस का रूप इख्तियार करता जा रहा है। बड़े बड़े कारखानादार अपने कारखानों में मैनेजर लगाकर स्कूलों के सरबराह बन बैठे हैं, खुद तो लुंगियों पर भी पहुंच जाते हैं। मालेगांव शहर में बेशुमार ऐसे हरामखोर दलाल अफराद हैं जो तालीम माफिया का किरदार अदा करते हैं और स्कूलों को कहीं बेज़रूरत फ़ायदा दिलवा देते हैं, कहीं बेज़रूरत नुकसान दिलवा देते हैं। बहरहाल इसमें फ़ायदा ऑफिसरान का होता है। मालेगांव शहर का तालीमी निज़ाम बिगड़ने के साथ साथ मालेगांव शहर में गरीब लोग अब तालीम से दूर हो जाएंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। इसके लिए शहर के तमाम सोशल वर्करों को, अदारों को, खुश फिक्र अफराद को तहरीर
رقم کرنے والوں کو، میڈیا والوں کو بھی اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ مالیگاؤں شہر کا نظام شفاف ہو سکے۔ اپنے یہی پرائمری اسکولیں ہیں جنہوں نے مالیگاؤں شہر میں بے شمار ڈاکٹر، انجینئر، صحافی اور الگ الگ شعبے میں نام کمانے والے افراد پیدا کیے ہیں۔ ہائی اسکولوں کی زندگی تو دوستوں 10-20 سال کی ہے، مگر پرائمری سے تعلیم حاصل کرنے والے آج بے شمار افراد کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ سے اچھا تعلیمی نظام ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے شہریان کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے پرکھوں کی وراثت کو سنبھالو ورنہ اب کے برسات میں دیوار بھی گر جائے گی۔